मैं समझता हूँ ये दूर तक जाएगा. So anyway, so good afternoon students. मुकुल जैन is there before you. So हम आप लोगों से मुखातिब हैं और हम लोग वही अपना सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के विषयों को टच किया है, छुआ है. हमने अभी थोड़ी देर पहले जीएसटी के ऊपर बात की है और जीएसटी को समझा है. अब हम एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, व्हाई इट इज डिडक्टेड, व्हाट आर द मोडालिटीज, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट इज द रेट एट व्हिच द टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड. Parajita is saying my voice is breaking. Is it still breaking? No, sir. No, sir. Okay, fine. Maybe, at her end, there could be some internet problem. So, well, now I will be presenting my screen. Yeah, this is again a presentation by the Income Tax Department also, which will be, which I presume will be latest, because you never know, when the rules get changed. So I wanted to discuss with you the latest things. So as you are seeing, I hope you are able to see now this Income Tax Department, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, right? So the heading says tax deducted at source from interest other than interest on securities, from fees for professional services, technical services, royalty, and from interest on securities. Yeah, one thing more. Yeah, even if you have invested in a bank FD, fixed deposit, the bank people will also deduct your TDS on your interest. So the rule says earlier the rule was the moment your interest in a financial year exceeds 10,000 rupees per annum, the bank people will deduct your TDS at the rate of 10% from your interest and will deposit with the income tax authorities. Similarly, when you provide any professional services or technical services to any institution or any company, the moment your professional fees exceeds 30,000 rupees, the host institution will deduct TDS from your amount at the rate of 10%. So therefore, as you are seeing from my slide, you have to watch my cursor. I'll be reading that sentence and then explaining you. It's written for quick and efficient collection of taxes. The income tax law has incorporated a system of deduction of tax at the point of generation of income. At the point of generation of income. So this tax is called tax deducted at source, commonly known as TDS. Under this system, tax is deducted at the point of origination of income. So tax is deducted by the payer, and the same is directly remitted to the government by the payer on behalf of the pay. See, what used to happen earlier, that people did not used to file their returns. So government did not come to know that who has earned any income, and when people are not filing returns, so it was very difficult for the government to track such people. So many years back, government introduced this law of TDS. They said the person who is giving the money to the other person, the onus, the responsibility will be on that person to deduct the tax and then deposit it with the government. So as a result, if suppose I have provided some services to a company and that company has given me my payment after deducting my tax, so automatically I will be forced to file my income tax returns. Otherwise, it might have happened that I would not have shown that income, or I would not have filed my income tax return. Now I will file my income tax return, because अगर मेरा टैक्स नहीं बनता है तब भी मैं
टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करूंगा जिससे कि मैं क्लेम कर सकूं गवर्नमेंट से कि भाई मेरा रिफंड भेज दीजिए, मेरा टैक्स नहीं बनता था, मेरा टैक्स कट के आपके पास जमा हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए सो to ensure that more and more people comes in that under the tax bracket, not tax bracket, under the tax net rather, टैक्स के नेट में आ जाए ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करेंगे, भले ही रिफंड लेने के लिए फाइल करें, और गवर्नमेंट को पता भी चल जाएगा भाई इन लोगों की इनकम हुई है। So therefore I will read this line once again. For quick and efficient collection of taxes, the income tax law has incorporated a system of deduction of tax at the point of generation of income. So this system is called tax deducted at source, commonly known as TDS. Under this system, tax is deducted at the point of origination of income, जहां से इनकम का ओरिजिनेशन हो रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है वही मेरा टैक्स काटेगा। जैसे मेरा एम्प्लॉयर है, या मैंने किसी के लिए, मैं कहीं पर विजिटिंग फैकल्टी जाता हूं और मैं, तो वो इंस्टीट्यूट मेरे को टैक्स काट के देगा मेरा जो पेमेंट है, या मैं कहीं पर ट्रेनर हूं, या मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी है, या मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूं कहीं पर और मैंने कॉन्ट्रैक्ट का काम किया है। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने किसी ऑफिस को वहां पर उनका ऑफिस में इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस की है, या आप आर्किटेक्ट हैं, आपने आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी है किसी को, तो वो जो आपका क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है वो आपका टैक्स काट के देगा। So therefore tax is deducted by the payer and the same is directly, और वही फिर जमा कराएगा जो काट रहा है गवर्नमेंट के पास। So therefore next paragraph we are reading, introduction, we are saying the provisions of tax deducted at source presently applies to several payments like salary, which is what you were saying, interest like banks, so a salary employer will deduct your TDS, interest banks or financial institution from where you are earning will deduct, commission if you are working on commission, let's say you are an insurance agent, you are a mutual fund agent or brokerage, or professional fees, or you are receiving royalty. Suppose you are a writer, you are an author, you have written a book for a publisher. So publisher is paying your royalties based on the sales of book. The more the books are sold, so they give some royalty to the author of that book. So while giving the royalty also they are deducting the TDS. So therefore in the next line we are saying in this part you can gain knowledge on three major payments covered under the TDS mechanism, that is TDS on interest, then TDS on interest on securities other than interest on securities, and then TDS on fees for professional and technical services and royalty. First of all, we are talking about TDS that is deducted at source from interest other than interest on security. Securities का मतलब होता है bonds and debentures, उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको FD से, so that is called other than interest on security, which comes under section 194A. So this deals with the provisions relating to TDS on interest other than on securities. So tax is to be deducted under section 194A if interest is paid to a resident. Thus, the provisions of section 194A are not applicable in the case of payment of interest to a non-resident. Payments made to non-residents are also covered under TDS mechanism. However, tax in such a case is to be deducted as per section 195. See, you people must have seen or must have heard from your house family members itself. Like I was saying कि बैंक FDs में आपका इंटरेस्ट कट जाता है। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, वैसे 10,000 के ऊपर आपका TDS काट देता है बैंक। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटेगा। अगर आपको लगता है कि आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो तो बैंक को कैसे मना करोगे कि भाई हमारा TDS मत काटो? किसी को पता है एक फॉर्म होता है उसके लिए, वो फॉर्म भरना पड़ता है, 15G फॉर्म। वेरी गुड। किसने बोला ये? सर हर्षिता। हाँ हर्षिता, वेरी नाइस, वेरी गुड। 15G form is for general citizens.
आपको एक 15G फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको बैंक को देना पड़ता है। और अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है? 15H 15H। उसके लिए फॉर्म है 15H, सिमिलर फॉर्म है बट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए 15H रखा है उसका नाम। और जो नॉन सीनियर सिटीजन है बिलो 60 इयर्स ऑफ एज, उनके लिए 15G फॉर्म है। वो आप भर के देते हैं। उसके अंदर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कितना कौन सा एफडी है, और उसके अंदर आप डिक्लेरेशन देते हैं आप कि माय इनकम इज बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट, और my income does not come under tax bracket, so therefore do not deduct by TDS। तो वो आप बैंक को देते हो, तो फिर बैंक आपका, ये हर फाइनेंशियल ईयर में आपको बैंक को देना पड़ता है, तब बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, SM एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फर्म। ये बैंक भी है, भले ही आपने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, आपने किसी बिजनेस फर्म को पैसा दिया, तो बिजनेस फर्म भी आपका TDS काट के आपको आपका इंटरेस्ट देगा। तो वही वाला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। SM Enterprises, a partnership firm, took a loan of 8,40,000 from a person resident in India. Interest on loan for the financial year 1920 amounted to 84,000। तो इसका मतलब 10% का इंटरेस्ट पे उसने पैसा दिया था, तो 84,000 का उसका इंटरेस्ट बैठा। Should the firm deduct tax at source from the interest? So यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है नीचे जहाँ मेरा कर्सर है। So they are saying yes, tax is to be deducted under section 194A on the interest. Tax is to be deducted if the interest is paid to a resident. In this case, the firm has paid interest to a resident and hence the firm has to deduct tax from interest of 84,000 paid by it. ये नीचे आएगा हमारे इसी में ही 10% का TDS काटना होता है, तो 84,000 में 8,400 काट के बाकी पेमेंट उसको इंटरेस्ट देगी 8,400। ये SM एंटरप्राइजेस जो है ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में उसको जमा कराएगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है जी, इज इट ओके? यस सर। राइट। सिमिलरली लेट अस, सर ये इंडिविजुअल से लिया इसलिए वो TDS काट रहा है, अगर बैंक से लेता तो नहीं TDS काटता। अगर एक मिनट दोबारा पूछे क्वेश्चन। इसने लोन लिया है इंडिविजुअल से, ओके। अगर ये लोन लेता बैंक से, हाँ तब नहीं काटता। बैंक्स वगैरह वो, हाँ कुछ इसमें एंटिटीज हैं जो एग्जेम्प्टेड है, उनका TDS नहीं कटेगा। करेक्ट करेक्ट। अगर ये लोन लेता बैंक से तब नहीं काटता, तब ये बैंक को वही अपनी EMI देता, तब नहीं कटेगा। करेक्ट, यू आर राइट। तो कुछ हम एग्जेम्पशंस भी पढ़ेंगे। बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, इसमें कहाँ गया? इलस्ट्रेशन 2 इज SM Enterprises, a partnership firm, took a loan of same loan from a non-resident. So should the firm deduct tax or not? So the answer is ये काटेगा, बट इसके इस सेक्शन में नहीं काटेगा, ये 195 के सेक्शन में काटेगा। वो आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग रेट है। बस ये है फिलहाल आंसर इसका। अब ये है कि हु मस्ट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ये देखिए, हु मस्ट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, इसमें लिखा है कि एवरी पर्सन दैट इज द पेयर अदर देन एन इंडिविजुअल और ए HUF हु इज रिस्पॉन्सिबल to pay interest to a resident is liable to deduct tax at source. Every person other than individual or HUF. However, an individual or a HUF whose total sales or gross receipts or turnover from a business or profession carried on by him exceeds the monetary limits specified under section 44 AB during the financial year immediately preceding the financial year in which the aforesaid amount is credited or paid shall be liable to deduct tax. In other words, an individual or HUF is liable to deduct tax TDS if such individual or HUF was liable to get its account audited under section। हाँ, इसमें देखिए एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं
तो अब आप टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, टैक्स नहीं काटेंगे, क्योंकि आप कहाँ जमा कराएंगे, आप तो इंडिविजुअल हैं, आपके यू डोंट हैव दैट बैंडविड्थ कि आप टैक्स जमा कराओ, आपको ये सब पता नहीं है ना। आप अगर फर्म है तब तो आपके पास पूरे अकाउंटेंट होंगे, उनको पता है कहाँ टैक्स जमा कराना है, सब कुछ है। तो आप इंडिविजुअल है तो आप किसका क्या टैक्स काटोगे, तब नहीं है। लेकिन हाउएवर अगर भले ही आप इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल होके सपोज आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, सपोज आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं कि आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है, और एक रूल क्या है, एक ये भी रूल आपके लिए जानना आवश्यक है, अगर आपकी टर्नओवर या आपके टोटल रेवेन्यूज अगर 2 करोड़ हैं इंडिया में, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो आपको ऑडिटर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आपको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। चाहे आप पार्टनरशिप फर्म है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, you will have to get your account audited the moment your turnover exceeds 2 crores. However, if you are a company, then irrespective of the turnover, even if it is less than 2 crores, you will have to get your accounts audited because you fall under the gamut of companies. So for example, we are seeing illustration 1 where here they are saying that Mr. Kumar is running a plastic factory under proprietorship. The total turnover of the factory during the financial year 18-19 amounted to 84 lakh. On 1st April 2019, he took a loan from his friend who is residing in Mumbai, and the funds were used in the business. So interest on loan for the financial year 1920 amounted to 50,000 का interest बना. So should Mr. Kumar deduct tax from the interest of 50,000 because Mr. Kumar एक इंडिविजुअल की तरह प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, तो क्या उनकी लायबिलिटी बनती है? इसमें आंसर लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन एन इंडिविजुअल हैज टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट if he is liable to get its account audited. In this case, interest pertains to financial year 1920. Thus, if in the financial year 1890, Mr. Kumar was liable to get his account audited, then he will be liable to deduct tax at source on interest of 50,000 to be paid by him. However, he was not liable to get his accounts audited during the financial year, then he will not be liable to deduct tax at source from interest of 50,000. For the financial year 18-19, the person has to get his accounts audited if the turnover from the business exceeds 1 crore. In this case, the turnover which was below. अच्छा, अब ये 1 करोड़ कर दिया. अच्छा, मेरे को ये आइडिया था कि इन्होंने 2 करोड़ कर दिया. अभी 1 करोड़ ही शायद अभी नए फाइनेंशियल ईयर में करा है 2 करोड़. अच्छा, 18-19 में 1 करोड़ था कि आपको अकाउंट्स ऑडिट करने हैं. सॉरी, ये 18-19 का दिया हुआ है. For the financial year 18-19, the person has to get his accounts audited if the turnover from the business exceeds rupees 1 crore. So in this case, the turnover of Mr. Kumar is 84 lakh, which is below 1 crore. So he is not liable to get his account audited for the financial year 18-19. Right. So therefore, as Mr. Kumar was not liable to get his accounts of the year 18-19 audited, so he is not liable to deduct tax at source in respect of interest paid by him. So this is as simple as this. ठीक है. Similarly, एक और हम एग्जांपल देखते हैं illustration 2 में. Mr. Rajat is running a garment factory. ये हमने इंडिविजुअल्स के एग्जांपल लिए हैं proprietorship firm में. The total turnover of the factory during the financial year 18-19 is 1 crore 84 lakh. We took a loan and the loan इंटरेस्ट बन रहा है 84,000 का. तो क्या उसको टीडीएस काटना है? यहाँ इसको काटना है क्योंकि ये ऑडिटेड होना पड़ेगा उसका अकाउंट, बिकॉज 1 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर है. देखिए, वही लिखा है इंडिविजुअल डिडक्ट टैक्स. ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, ये लिखा है मिस्टर रजत वाज लायबल टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड
then he will be liable to deduct tax on interest of 84,000. So सेम चीज रिपीट है, 1 करोड़ से ऊपर उसको अकाउंट. सो हेंस यहाँ देखिए, एंड हेंस ही विल बी लायबल टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19. The final sentence is, as Mr. Rajat is liable to get his books of account audited, he is liable to deduct tax in respect of interest paid by him. Similarly, now this is a partnership from Kumar and Company. Again, he has got a turnover of 84 lakh. He took a loan from another friend, wherein his interest amount is 75,000. So again, should he deduct tax? So the answer is, as per Section 194A, any person other than individual or HUF, क्योंकि partnership firm has to deduct tax. So during the preceding, hence irrespective of the obligation to get account audited during the preceding year, the firm has to deduct tax from the interest payable by. तो क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए छूट दी गई है कि अगर उनके अकाउंट ऑडिटेड होते हैं, और अकाउंट ऑडिट होते हैं 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे, तभी वो लोग टीडीएस काटेंगे. बाकी अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर और इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स. सॉरी. चलिए, ये हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें. ये देखिए, अब ये कुछ आ गई है आपके पास सामने, ये चार्ट आ गया. When no tax is to be deducted, no tax is deducted if aggregate amount of interest credited or paid to the payee in respect of time deposit. Time deposit का मतलब वही है फिक्स्ड डिपॉजिट during the financial year doesn't exceed the following limit. बैंकिंग कंपनी है, अगर आप बैंक हैं, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए पहले 10,000 था, इस फाइनेंशियल ईयर से 1920 से इसको 40,000 कर दिया गया. सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो सीनियर सिटीजन के लिए सेम 50,000, फॉर अदर्स इट इज 40,000. इन पोस्ट ऑफिस ऑल्सो 50,000 and 40,000. In any other case, it is 5,000. The moment the interest amount is over 5,000, they will deduct the TDS. And नीचे लिखा है देखिए, the ceiling limit as specified above shall not be computed branch wise if such banking company or cooperative society or public company has adopted core banking solution, that is CBS. क्योंकि आजकल सारी बैंक्स जो हैं, ब्रांचेस, वो लिंक्ड हैं, कंप्यूटराइज्ड बैंक सिस्टम है, तो सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन से लिंक्ड हैं, तो टोटल आपका इंटरेस्ट वो निकाल सकते हैं. सारे डिफरेंट बैंक्स में आपकी टाइम डिपॉजिट्स या एफडीज हो तो उसको निकाल करके वो ये अमाउंट निकालेंगे. तो जहां आपका इंटरेस्ट इन अमाउंट से ऊपर निकल गया तब वो टीडीएस काटेंगे. तो अभी ये अच्छा कर दिया, पहले तो 10,000 तो बड़ी आसानी से बन जाता था. अब देखिए, इसी से रिलेटेड अब एक एग्जांपल बताया है. अगर बैंक नहीं है, एसएम एंटरप्राइजेज है, पार्टनरशिप फर्म है, उसने एक बहुत छोटा सा लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट बैठा है 840 रुपया. क्या इसको अभी भी टीडीएस डिडक्ट करना है? नो, बिकॉज 5,000 से ऊपर
ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे। बैंक्स के अलावा लोग, बाकी लोग जो है वो 5,000 से ऊपर डिडक्ट करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट 5,000 बना ही नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट सिर्फ 840 रुपया बना है, तो नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। राइट? Yes, sir. Any doubts? एक और दूसरा एग्जांपल अब आ गया इसी से रिलेटेड के 84,000 रुपीज का, सॉरी 8400 रुपीज का इंटरेस्ट बना है। क्या इसको टीडीएस काटना चाहिए? तो इसमें क्योंकि 5,000 से ऊपर हो गया, ये नीचे लिखा है इंटरेस्ट इज 8,400, दैट इज अबव 5,000, सो हेंस द फर्म इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द एंटायर अमाउंट ऑफ 8,400। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा था क्योंकि 5,000 तक नहीं काटना है, तो क्या 5,000 इसमें काट के 3,400 पे कट करना है? नहीं, एक्सेस ऑफ 5,000 नहीं, पूरे अमाउंट पे कटेगा। 5,000 तक अगर इंटरेस्ट है तब नहीं काटना है अपना, अदरवाइज पूरे अमाउंट पे काटना है। सिमिलरली आपने फिक्स डिपॉजिट कराया मिस्टर कुमार ने, तो इंटरेस्ट बैठा 34,000, तो बैंक क्या टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा, क्योंकि 40,000 है जनरल सिटीजन्स के लिए अब लिमिट, तो 40, so 34,000 is below 40,000, so no TDS will be deducted by the bank. Okay. सिमिलरली एक मिस्टर कपूर हैं 54 एज के, उनका इंटरेस्ट बैठा है 55,000, तो क्या उनका टीडीएस कटेगा? हाँ, उनका कटेगा, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन में नहीं आते, तो 40,000 के ऊपर हो गया उनका अमाउंट। और अगर सीनियर सिटीजन भी होते तब भी कटता, 55,000 रुपया हो गया, तो पूरे अमाउंट पे कटेगा। तो अब वो पूछ रहे हैं क्या 40,000 पे कटेगा या 15,000 पे कटेगा? ये पूरे अमाउंट पे कटेगा, तो ये लिखा है so the annual interest in this case exceeds 40,000, hence bank has to deduct tax on the total interest of 55,000. ये देखिए, ये चीज जो अभी हम बोल रहे थे, no deduction of tax shall be made under this section in the case of an individual who is resident in India if such individual furnishes to the payer a declaration in writing in form 15G or 15H, as the case may be, to the effect that his income is below exemption limit. So for example, declaration in duplicate is to be made in form number 15H when the recipient is a senior citizen, and form number 15G when the recipient is other than senior citizen. And declaration in form number 15G or 15H can be made only by an individual resident in India. Okay. Now another interesting example. I hope you are able to see this. Mr. Khushal and Mr. Mangal are partners of
SM Trading Company, which is a partnership firm. Just 1 minute, give me 1 minute. Okay, sir. Okay, sorry to have for that small break. Hello, am I audible once again? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, Yes, yeah, sir. yeah. There are some phone calls coming since morning, and there was some important issue which is going on. Okay, so back to our TDS thing. Yeah, I was talking about this. Yeah, I was saying that this is an example that Mr. Khushal and Mr. Mangal are partners of SM Trading Company, a partnership firm. So the firm has paid interest on a capital of 84,000 to Mr. Khushal and 90,000 to Mr. Mangal. Should the firm deduct tax at source under Section 194A from interest paid to the partner? No, that is another interesting example. These two persons are partners of the firm, and as a partner, they have invested capital in the firm, and in turn, they are getting interest on their capital. So, should the firm deduct TDS
for them. Now the answer to this question is the provision of section 194A do not apply to interest credit or paid by a partnership firm to its partners. So partners के ऊपर लागू नहीं होता है. Thus in this case the firm is not liable to deduct tax from interest paid to the partners. So this is another important thing. Apart from the above discussed instances, few other instances where no tax is to be deducted as follows. अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि बैंक भी काटेगा, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है इसमें सेक्शन में नंबर 1 interest paid to any banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies or any cooperative society engaged in carrying on the business of banking. जैसे बहुत सारे cooperative banks आ गए, इसमें बहुत सारे scheduled banks आ गए, हम उनसे लोन लेते हैं तो हम उनको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस लागू नहीं होगा, हम लोग उनका टीडीएस नहीं काट सकते. ठीक है ना. फिर सेकंड है इंटरेस्ट पे टू एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. जैसे बहुत सारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बनी हुई हैं, हर स्टेट में बनी हुई हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. सिडबी बैंक बना हुआ है, जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा बैंक है. तो इस तरह के या हर स्टेट में बने हुए हैं, यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि इंडस्ट्रीज को लोन्स देते हैं. तो उससे अगर आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा. सिमिलरली इंटरेस्ट पेड टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर एलआईसी एक्ट के ऊपर टीडीएस लागू नहीं होगा. इंटरेस्ट पेड टू यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट पेड टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस. बेसिकली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस या बैंकिंग के बिजनेस में लगी हुई है तो उनके ऊपर नहीं होगा. देन interest paid to any institution, association or body or class of institution, association or bodies which the central government may notify. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि ये बॉडी, ये एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल हाँ बहुत सारी एनबीएफसीज हो सकती हैं. एनबीएफसी से हमने लोन उठाया है और अगर वो नोटिफाइड है एनबीएफसी तो उनके ऊपर भी लागू नहीं. Similarly, interest paid by a cooperative society to a number thereof to such income credited or paid by a cooperative society to. एक cooperative society ने दूसरे cooperative society से लिया है लोन, तब उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा. Then interest credited or paid in respect of deposits notified by the central government. Interest credited or paid in respect of deposits with a primary agricultural credit society. तो cooperative rural societies वगैरह भी आ गई इसमें. देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज भी आ गई इसके अंदर. कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई है गवर्नमेंट ने किसी से तो उनको भी ये छूट दी जाती है. तो देखिए उसी से ही रिलेटेड एग्जांपल आ गया कि कमल एंटरप्राइजेज, अ पार्टनरशिप फर्म, हैज टेकन अ बिजनेस लोन फ्रॉम XYZ बैंक. सो इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 84,000. शुड द फर्म डिडक्ट टैक्स under section 194A? No, because banking regulation act में बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होता. अब what is the rate of TDS? Finally जो मैंने आपको बताया था वो finally what is the rate of TDS? इंटरेस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ. As per section 194A, TDS has to be deducted at the rate of 10%. However, this is important, ये आप पढ़िए. However, if the payee does not furnish his PAN, permanent account number, then the payer has to deduct tax at the higher of the following: at the rate specified in the provision or at the rate of in force or at the rate of 20%. Basically आप ये समझो कि 20% काटना है. PAN नंबर देता है तो 10% टैक्स काटना है, नहीं तो 20% काटना है. बैंक्स में भी ये है कि अगर आपका टैक्स कट रहा है टीडीएस, तो वो पैन नंबर मांगते हैं, तब 10% काटते हैं. अगर आपने पैन नंबर नहीं है आपके पास या आपने फर्निश नहीं किया है आपके पास, लेकिन आपने अपना पैन नंबर नहीं दे रखा है बैंक को, तो बैंक सीधे 20% से काट लेगा. देखिए ये एग्जांपल दिया इसका. SM Traders, a partnership firm, has taken a loan from Mr. Kumar residing in Delhi.
एनुअल इंटरेस्ट हमने देखिए सेम एग्जांपल एक केस स्टडी लेके चले 84,000 का एक ही अमाउंट लेकर के डिफरेंट एग्जांपल बता रहे हैं। मिस्टर कुमार ने अपने पैन कार्ड की कॉपी फर्निश की है, तो किस रेट से कटेगा? तो पैन कॉपी फर्निश की है तो 10% से कटेगा, सिंपल बात, यही आंसर है। दूसरा एग्जांपल ये है इलस्ट्रेशन 2, एसएम बिल्डर्स ने एक लोन लिया है कहीं से और इंटरेस्ट अमाउंट बैठा है 55,200 का। पैन नंबर वो अपना दे नहीं पाए हैं उनको, तो किस रेट से कटेगा? तो आंसर वही है कि 20% रेट से कटेगा इंटरेस्ट रेट। तो 55,200 का इंटरेस्ट बैठा तो 20% इसका हुआ 11,040 रुपया उनका इंटरेस्ट काट के बाकी इंटरेस्ट दे दिया। अब जिसने काटा है इंटरेस्ट, वो टैक्स काटा है जिसने इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो जमा भी कराएगा सर। So tax deducted from interest by the non-government deductor is to be paid to the credit of the central government by the following dates. इसमें dates भी दी हुई हैं। Tax deducted during the month of April to February should be paid to the credit of the government on or before 7 days before the end of the month in which the tax is deducted. यानी कि अगर किसी ने जुलाई का टैक्स काटा था तो वो 7 अगस्त तक जमा हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आप अगस्त में टैक्स काट रहे हैं तो वो 7 सितंबर तक गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। सिर्फ मार्च के लिए, सो अप्रैल टू फरवरी में यह है किसी भी महीने का जो टैक्स है वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर होने जाना चाहिए। लेकिन मार्च में, क्योंकि मार्च के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, मार्च में बहुत सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग होता है, सो टैक्स डिडक्टेड मार्च का जो टैक्स है वो 30 तारीख तक, अप्रैल की 7 अप्रैल की बजाय 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं जो भी आपने टैक्स काटा है। ठीक है, यस सर। अब देखिए एक और एग्जांपल दिया है, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, वही उन्होंने मंथली इंटरेस्ट 5,000 का मंथली इंटरेस्ट देते हैं। वो मिस्टर कौशल से लोन लिया हुआ है इस फर्म ने और हर महीने उसका 5,000 इंटरेस्ट आता है और 10% उसका वो काटते हैं। और ये कब कब जमा कराते हैं ये देखिए, उन्होंने ये एक इलस्ट्रेशन दिया है। अप्रैल का जो टैक्स है वो 3 तारीख को जमा कराया, 3 मई को, सही है। मई का टैक्स जो है 7 जून को जमा कराया, ये भी सही है, 7 तारीख तक। जून का जो टैक्स है वो 18 जुलाई को जमा कराया, ये गलत है। यहाँ इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी इसके फर्म को, क्योंकि 7 तारीख तक नहीं कराया। जुलाई का 2 अगस्त, ये भी ठीक है। अगस्त का 4 सितंबर, ये भी ठीक है। सितंबर का 9 अक्टूबर, ये गलत हो गया, देखिए 7 तारीख के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अक्टूबर का 6 नवंबर ठीक है। नवंबर का 11, ये भी गड़बड़ हो गया, 11 तारीख। दिसंबर का 2 जनवरी ठीक है। जनवरी का 5 फरवरी ठीक है। फरवरी का 5 मार्च, ये ठीक है। मार्च का 25/4 को, ये भी ठीक है, क्योंकि मार्च का 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ यस यस यस, ये नो दिया है, ये गलत है। वेदर डिपॉजिटेड इन द ड्यू डेट, नो, क्योंकि 18 तारीख हो गई। 7 तारीख के अंदर अंदर जमा कराना है। देखो ये भी एक जिम्मेदारी है, आप किसी का टैक्स काट रहे हैं तो आप, और गवर्नमेंट में जमा नहीं करा रहे हैं। मैंने एक इंस्टीट्यूशन में कुछ साल पहले लेक्चर दिया था, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, एज अ विजिटिंग फैकल्टी, उनके यहाँ गेस्ट लेक्चर्स दिए थे। उन्होंने मेरे को पेमेंट दिया था टीडीएस काट के, और बाद में मैंने देखा उन्होंने जमा ही नहीं कराया, और आज तक मैंने उनको अभी दिया नहीं है आड़े हाथों। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं इनकम टैक्स में उनका कंप्लेंट कर दूं, उन्होंने मेरा टैक्स काट लिया और वहां जमा नहीं कराया टैक्स अथॉरिटी, और अब तक साल भर उससे ज्यादा हो गया। अब मुझे टाइम नहीं मिलता, छोटा सा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 3-4 हज़ार रुपए का अमाउंट है, इसलिए मैंने कहा यार कौन जाए इनकम टैक्स में लिखे उनके लिए। ये देखो ऐसे करते हैं लोग। ये देखो 9 लिखा ना, ये 9 तारीख हो गई। देखो कितना स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, ये 11 तारीख हो गई, नो नो।
इसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब जिसको जमा कराना है, जिसने काटा है टीडीएस किसी का और उसको जमा कराना है, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये देखिए लिखा है, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टीडीएस as per section 201, if the person who is liable to deduct TDS, tax at source, does not deduct tax at source, or after so deducting fails to pay the whole or any part of the tax to the credit of the government, then such person shall be liable to pay simple interest at the following rate. या तो उसने काटा नहीं है या काट लिया है और जमा नहीं कराया गवर्नमेंट ने, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट शैल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1% एवरी मंथ, यानी कि हर महीने का 1% इंटरेस्ट उसको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच लेविड। इंटरेस्ट शैल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर एवरी मंथ or part of the month on the amount of such tax on the date on which such tax was deducted to the date. अगर टैक्स काटा नहीं है तो 1% का हाँ पर मंथ है। अगर टैक्स काट लिया है और जमा नहीं कराया तो 1.5% हर महीने का जमा कराना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1% फॉर डिले इन डिडक्शन and 1.5% for delay in payment after deduction. मेरा तो 2 साल होने वाला है जो मेरा टैक्स, चाहे वो अमाउंट छोटा सा है, 4-5 हजार का है, लेकिन 1.5% डिले से अब उनको मैं इंटरेस्ट दिलवाऊंगा। अब लिखूंगा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका। देखो ये पढ़ के ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो, वरना मैं भूल जा रहा था उसको, अब मेरे भी दिमाग में आ गया कि उनका इनकम टैक्स में एक बार लिखने की देर है कि साहब मेरा टैक्स काटा है, उन्होंने देखिए 2 साल हो गए आपका जमा नहीं कराया है, तो उनको 4,000 रुपया 2 साल में उनको 8,000 देना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा 1.5% पर मंथ के हिसाब से। कितना हो गया 1.5% पर मंथ के हिसाब से? 12 और 6 18% पर एनम हो गया, और 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, इसके बाद जो संस्था आपका टैक्स काटती है उसके एवज में वो एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको इशू करती है। सो देयरफॉर एवरी डिडक्टर, ये आप याद रखिए, अगर आप किसी फर्म में काम करेंगे, कंपनी में, तो आपकी फर्म को उसको टीडीएस सर्टिफिकेट, तो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट बड़ा, इट शुड बी प्रॉपरली रेडी टू शोल्डर सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पूरा सुदृढ़ होना पड़ेगा कि वो सब टीडीएस टाइम पे जमा कराएं, टाइम पे, और जितनी पार्टीज का काटा है टैक्स उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करें। सो एवरी डिडक्टर हैज टू फर्निश अ टीडीएस सर्टिफिकेट टू द डिडक्टी इन फॉर्म नंबर 16A। हाँ, कल मुझे आप याद दिला दें, कल मैं अपनी खुद की रिटर्न्स दिखाऊंगा आपको और अपना फॉर्म 16A वगैरह दिखाऊंगा, ये आपको अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाकर के। ये क्या होता है, देखो कैसे कैसे डिडक्ट होता है। पिछले सालों के भी मैं आपको फॉर्म 16A दिखाऊंगा, उसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं इनकम टैक्स की साइट से कि हमारे कौन कौन से टैक्स डिडक्ट हुए हैं इस साल भर में। मुझे भी चेक करना है, मैंने इस साल की रिटर्न फाइल करनी है, मैंने खुद नहीं देखा अभी इस साल मेरा कोई कहीं से टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सैलरीड वाले के लिए याद रखिए कि फॉर्म 16 नंबर 16 होता है, और प्रोफेशनल इनकम या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए फॉर्म 16A होता है, और द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन क्वार्टरली बेसिस। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सेबी के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो सेबी ने हमको बहुत सारे फॉर्म नंबर 16A इशू करता था हर क्वार्टर में। तो देखिए, अप्रैल टू जून क्वार्टर का 15 अगस्त तक ड्यू डेट फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर। 15 अगस्त अभी देखिए परसों गई है, तो 15 अगस्त तक उसको ये टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का 15 नवंबर तक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा, अक्टूबर टू दिसंबर का 15 फरवरी, एंड जनवरी टू मार्च का 15 जून तक। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है इसमें, मतलब एक क्वार्टर का 1.5 महीना दिया है इसको ना। जून खत्म होने के बाद पूरा जुलाई हो गया और आधा अगस्त हो गया, 1.5 महीना। इसी तरह सितंबर का 1.5 महीना के बाद इसमें 1.5 महीने का टाइम दिया आपको, इसमें 2.5 महीने का टाइम दिया है, अप्रैल मई जून।
जनवरी टू मार्च क्वार्टर का 15 जून तक। और सिमिलरली गवर्नमेंट को, ये तो उसको देना है, किसको देना, पार्टी को देना है जिसका टैक्स काटा है। गवर्नमेंट के पास every furnishing the TDS return, every deductor who has deducted tax at source has to furnish the details of tax deducted to by him to the government. So these details are to be furnished to the government in the prescribed form. इसके लिए क्या डेट है, अप्रैल टू जून के लिए 31 जुलाई। ये पहले है उससे, पार्टी को तो देना है अप्रैल टू जून का, आपने पढ़ा था जुलाई 15 अगस्त तक, लेकिन गवर्नमेंट को फाइल करना है डीएस रिटर्न 31 जुलाई तक। ठीक है, जुलाई टू सितंबर का 31 अक्टूबर तक। डिफॉल्ट इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, फिर दोबारा दे दिया। डिफॉल्ट क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर में, डिफॉल्ट इन डिडक्शन ऑफ टैक्स, या गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये सब उसके लिए प्रोविजंस हैं। एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। As per section, any sum payable to a resident which is subject to deduction of tax at source would attract 30% disallowance while computing income chargeable to tax under the head profit and gains of business and profession. चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा इस इंटरेस्ट वाली चीज से। ये सारी पेनल्टीज दी हुई हैं कि 1.5% इंटरेस्ट अलग लगेगा, 30% उसका एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं होंगे, तो ये इतनी सारी चीजें। अब हम आते हैं, देखिए, प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी से। हाँ जी, यस माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा बीच में आप लोगों से गुफ्तगू कर ली जाए, थोड़ा सा आपसे वार्तालाप कर लिया जाए। सो लेट अस हैव सम चिट चैट विद यू पीपल। सो आर यू फाइंडिंग द सेशन बोरिंग और सम इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू? Yes, 62 or 63 students are present right now in the class. See, this is the subject is taxation. So whatever are the contents, we have to study them. तो थोड़ा सा, because it is online session also, तो हमें थोड़ा सा उस ढंग से आपको पढ़ाना पड़ रहा है कि आपके सामने एक स्क्रीन आए। तो अभी समझ में आ रहा है ना जो हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लाइन बाय लाइन थोड़ा सा आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट बहुत सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं। समझ आ रहा है। चलो, तो ऐसा है जी। अब आपका आ गया प्रोफेशनल सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी वगैरह में भी क्या क्या चीजें आती हैं। कोई भी फीस आपने ली है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, या आपने किसी को दी है तो आप काटेंगे, ली है तो आपकी कटेगी। टेक्निकल सर्विसेज दी है, डायरेक्टर्स फीस आपको मिली है। ओ देखिए, ये मुझे रियलाइज बीच बीच में हो जाता है, पढ़े हुए मैंने सब कुछ है, नॉट इन द नेचर ऑफ सैलरी। जैसे आने वाले टाइम में आप सुनोगे, एक बार 2020 पास निकल जाने दो, अभी क्या है 4-5 महीने बने हैं, तो आप मेरे को किसी भी कंपनी के बोर्ड पे आप डायरेक्टर पाओगे, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये मेरा रेजोल्यूशन है। तो जो मेरे को, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी, जो मेरे को डायरेक्टर की फीस मिलेगी, तो मेरा टीडीएस कटेगा। ठीक है नहीं? रॉयल्टी अगर किसी को कोई बुक्स मिलता है तो उसमें कटेगी, जो हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा इसको में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पेमेंट्स में डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी में फीस कटती है आपकी, वो भी आपको पे करेगा, वो आपका ये सब काटेगा, फीस टैक्स काटेगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब एग्जांपल्स हैं, हम इनको
ये सब समझ में आ जाएंगे आपको, एक बार डिटेल में हम आपको भेज देंगे, यू कैन गो थ्रू इट देम। ये पढ़ लेते हैं, व्हेन नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड। ये मैं जो आपको शुरू में बताया था आपको प्रोफेशनल फीस से, ये देखिए, नो टैक्स, सी माई कर्सर, नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल फीस or royalty or non-compete fees during the financial year does not exceed 30,000. However, there is no such limit in the case of director's fee. अच्छा, मतलब हमें अगर डायरेक्टर की फीस मिलेगी तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है, अगर हमें 10,000 20,000 भी मिलेंगे तो भी हमें टीडीएस कट के मिलेगा। ओके, ठीक है जनाब। यस तो सर। तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਮਿਲਣਗੇ तो ਤੁਹਾਡਾ टीडीएस कट जाऊगा। अगर आपका 30,000 रुपया कटता है तो तुहार टीडीएस कट जाएगा। क्या समझे? समझ गए सर। नहीं ना समझे? समझ गए? सर हम जो कॉलेज को फीस देते हैं उसमें टीडीएस काट सकते हैं हम? नहीं, उसमें नहीं काट सकते। उसमें टैक्स रिडम्पशन सिर्फ ले सकते हैं। नो, फिर क्या है, इसमें एक और रूल दिया हुआ है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। इलस्ट्रेशन 2, Ratan and Company, a partnership firm, is engaged in the business of trading of clothes. During the financial year, it took consultancy of a Delhi-based software engineer. The consultancy fees amounted to 31,000. Should the firm deduct tax from the fees of 31,000? Yes, because it has exceeded 30,000. The moment it exceeds 30,000, once the fees, ये सबसे नीचे लिखा है, once the fees exceeds 30,000, tax is to be deducted. From the entire fees and not from the fees in excess of 30,000. Hence, the fees will be deducted, will be liable to deduct tax on the total fees of 31,000. Second rule is no tax is to be deducted by a payer being an individual or HUF in respect of fees for professional service if such fees are to be paid for any personal service of such individual. वो individual वगैरह नहीं काटेंगे, लेकिन फर्म जरूर काटेगी। हाँ, अब इसमें एक और चीज है, मैं प्रैक्टिकल आपको चीज बताता हूँ। बहुत सारी जगह होती है, जैसे मैंने बहुत सारे विजिटिंग असाइनमेंट्स लिए हैं, विजिटिंग हम कहीं पर गए हैं, हमने विजिटिंग लेक्चर भी मैंने बहुत दिए हैं कॉलेजेस में, उसके अलावा भी कंपनीज में हमने कोई ट्रेनिंग ली है, 2 या 4 ट्रेनिंग हो गई बस हमारी, तो 30,000 अमाउंट हमारा बना ही नहीं है। तो या हमने सिर्फ 5-7 लेक्चर दिए, उसमें 30,000 रुपया अमाउंट नहीं बना, फिर भी वो टीडीएस काट रहे हैं। तो हम उनको बोलते हैं यार 30,000 के ऊपर आप काट नहीं सकते ना, 30,000 के ऊपर आप काट सकते हो, उससे नीचे क्यों काट रहे हो हमारा टीडीएस? अननेसेसरी हमारा काम बढ़ा रहे हो आप रिफंड लेने का। वो क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने एक ब्लाइंडली, भले ही आपकी 5,000 रुपए फीस बनी है, आपको टीडीएस काट के देंगे, 5,000 में 500 रुपए काट के 4,500 रुपया पकड़ा देंगे। वो क्यों? वो कहते हैं यार हम सबका फिर साल में हमें हमारा काम बढ़ जाएगा, हम सबका अमाउंट टोटल करते रहेंगे, 30,000 जब बना उसके ऊपर काटेंगे, और जो अमाउंट हमने आपको पहले दे चुका है उसके ऊपर तो हम काटेंगे नहीं। रूल ये है कि 30,000 के ऊपर अगर हो गया, जैसे 31,000 हो गया, तो पूरे 31,000 का 10% काट के जमा कराना है। और आपको अगर पहले 30,000 तक आपको पेमेंट दे दिया, उसके ऊपर 1,000 और बैठा, आपका 5,000 और फीस बैठी, तो आपका पहले तो 30,000 दे चुके हैं। तो इसलिए वो कहते हैं हम, the moment it comes under professional fees, they start deducting the TDS, even if the amount may be 5,000 or 4,000. Practically, this is what happens in the practical world. तो गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिए, बट प्रैक्टिकली उनको ये डिफिकल्टीज आती हैं कि बाद में तो वो उससे पैसा ले नहीं सकते, यार ला टैक्स दे मेरे को, एक बार दे दिया बंदे को तो उन्होंने, तो इसलिए वो चाहे आपको 3,000 का अमाउंट बैठ रहे, कई बार होता था शुरू में, जैसे हम पर लेक्चर किसी को 1,500 रुपया मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, उन्होंने एक लेक्चर का पैसा दे दिया किसी को और उसमें भी टीडीएस काट के दे रहे हैं वो।
इसमें भी वही है रेट 10% है अगर पैन कार्ड दिया है तो, अदरवाइज 20% है। हाँ, एक रूल और है रेट ऑफ टीडीएस, नीचे आप देख रहे हो एज पर सेक्शन 194J लगता है इसके ऊपर, प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द पेमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 194J। However, if the payee is engaged in the business of operation of call center, then tax to be deducted at the rate of 2% instead of 10%. कॉल सेंटर वालों के लिए, कॉल सेंटर वाले वो 2% से काटेंगे। तो इसमें भी वही चीज है, इशुएंस ऑफ टैक्स सर्टिफिकेट इशू करेंगे और इसमें कुछ ये एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर नहीं टीडीएस कटेगा, नेशनल डिफेंस लोन है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से मिलता है, इनके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। सर कैपिटल गेन पे कटता है टीडीएस, मतलब शेयर वेयर पे अगर करे तो? नहीं, कैपिटल गेन एक्चुअली एक ऐसी चीज है ना, कैपिटल गेन में मैंने जैसे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मैंने सेल कर दिए, तो उनको तो इतना ट्रैक नहीं है ना मैंने कितने में खरीदे, मैंने कब खरीदे थे, 5 साल पहले खरीदे, मैंने बेचे आज हैं, तो वो तो मेरे को जो पेमेंट मिल रहा है, कोई और बेच रहा है तो उसका पेमेंट मेरे बैंक में आ रहा है, वहां नहीं कटता है टीडीएस, वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टीडीएस का। वहां तो मुझे अपनी रिटर्न फाइल जब मैं करूंगा तो मुझे पता है ना मैंने कितने में खरीदा था, कितने बेचा था, वो मेरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैंने कितना कैपिटल गेन कमाया। वहां टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं, कैपिटल। और सर कोई चैरिटी वैरिटी दे रहे हो उसमें कटता है? चैरिटी ये एक बार अभी चेक करूंगा मैं इसको, इमीडिएटली अभी मेरे माइंड में येस एंड नो नहीं आ रहा है, तो ये चेक करके मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, है ना, चैरिटी का। हाँ, मैंने जैसे बताया रेंटल इनकम में कटता है अगर आप कमर्शियल प्रेमाइसिस, आपने कमर्शियल बेसिस पे किसी को रेंट पे दिया हुआ तो उसमें एक लिमिट है, वो लिमिट अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज की है, वो भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। द मोमेंट 1 लाख या 2 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट वो सॉरी रेंट आता है साल का, वो मैं एग्जैक्ट आपको चेक करके कल आपको वो बताता हूँ रेंट का कितने के ऊपर, कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके ऊपर टीडीएस काट के टेनेंट देगा उसको। अभी हम इसमें क्या काम करते हैं, अभी इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। ये देखिए एमसीक्यूज हैं थोड़ा से इसमें, आपके सामने आंसर भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। सेक्शन डैश डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेड टू अ रेसिडेंट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वगैरह या म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा जो लोन से इंटरेस्ट है वो आता है सेक्शन 194A में, तो आंसर इज टी 194A। Second question is, an individual or a HUF is liable to deduct TDS under section 194A, ठीक है, जो इंटरेस्ट है, if turnover or gross receipt from business or professional exceeds the threshold limits as prescribed for the purpose of tax audit under section 44AB in the preceding financial year, true or false? इसमें ये लिखा है कि एक इंडिविजुअल तभी टीडीएस काट सकता है या एचयूएफ तभी टीडीएस काट सकता है जब उसका जो रेवेन्यू है, चाहे प्रोफेशन से हो चाहे बिजनेस से हो, वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करे, जैसे 1 करोड़ से ऊपर पार करे जब उसको ऑडिट कराना पड़े। ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स?
ये ट्रू है, अभी पढ़ा था ना हमने शुरू में, कोई भी फर्म है वो तो टीडीएस काटेगी भले ही कितना भी इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, तो जब आपके अकाउंट्स ऑडिट में आते हैं, और आपके अकाउंट्स ऑडिट में कब आएंगे, जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करती है, तो तभी आप किसी का टीडीएस काटेंगे। तो दिस आंसर इज ट्रू, ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, which you are seeing at the bottom of the screen, extreme bottom, as per section 194A, tax is to be deducted at the time of payment or credit of interest to any account by whatever name, whichever is later. हाँ, एक और रूल है कि टैक्स डिडक्ट होगा, कब डिडक्ट होगा, या तो जब आपने उसको पेमेंट किया है या इंटरेस्ट उसका क्रेडिट किया है, whichever is earlier. इसमें लिखा है whichever is later, नहीं ये फॉल्स है, whichever is earlier होना चाहिए। हाँ, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट बी। तो इसमें है whichever is earlier। इसका मतलब समझे आप, क्या मतलब है? हाँ जी, इसका मतलब समझे क्या आप? यस सर। जैसे बैंक है, आपने एफडी कराई है, सपोज कर लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई है बैंक से। बैंक का क्या रूल है, वो हर क्वार्टर में इंटरेस्ट आपका बन जाता है। हर क्वार्टर में बैंक जो है कंपाउंडेड, क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है उसका इंटरेस्ट। आपको फाइनल पेमेंट तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको कंपाउंड होकर के प्रिंसिपल के साथ 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है? हर क्वार्टर में ड्यू हो रहा है। तो टैक्स कब काटेगा? हर क्वार्टर में टैक्स काटेगा बैंक, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए रूल ये है, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट तो आपको 5 साल के बाद हो रहा है, तब नहीं काटेगा। और क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर में। तो विचएवर इज अर्लियर है रूल। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है विचएवर इज लेटर, तो क्या हो गया? फॉल्स हो। जो भी पहले हो, चाहे पैसे आपको पहले दे दिया आपके हाथ में, या आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो आपका टीडीएस काट दिया। ठीक है जी? यस सर। समझ में आ रहा है जी ਤੁਹਾਨੂੰ? यस सर, आ रहा है। पल्ले पड़ रहा है या सारा ऊपर से निकल रहा है? अब एक और क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। इसमें क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 40A(1)(a), any sum payable to a resident which is subject to deduction of tax at source would attract 70% disallowance while computing interest chargeable so and so। इतना बड़ा सेंटेंस है, बेसिकली फॉल्स है ये। 30% डिसअलाउंस होगा अगर उसने टैक्स जमा नहीं कराया। तो इसका आंसर है 30% डिसअलाउंस है, नॉट 70%। चलिए नेक्स्ट है 194A में क्या था? इंटरेस्ट था। 194J में क्या है? टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन फीस। आंसर है सी, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पेड टू अ रेसिडेंट, आता है 194J में। 194J में क्या आता है? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, डायरेक्टर्स फीस, रॉयल्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No tax is to be deducted with the amount of professional fees or technical fees or non-competent fees during the financial year। क्या लिमिट है टेक्निकल फीस, प्रोफेशनल फीस की? कितने के ऊपर टैक्स कटेगा टीडीएस? 5,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर, या 50,000 के ऊपर? 30 सर, 30। 30, yes। So answer is 30,000। तो आंसर इज सी। फिर है ये ट्रू एंड फॉल्स का आ गया। 194J जो प्रोफेशनल फीस के ऊपर है, 10% से रेट कटता है, करेक्ट? नहीं, ये लिखा है 10% फ्रॉम द पेमेंट मेड टू पर्सन हु इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के बिजनेस में 2% से कटता है, तो फॉल्स हो गया ये, बी फॉल्स, क्योंकि कॉल सेंटर वाले बिजनेस में 2% से कटेगा टीडीएस।
अगर कॉल सेंटर के बिजनेस से काम लिया है आपने, तो कॉल सेंटर वाले का पैसा आप जो है दोगे 2% काट के। जैसे आप कल को किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो और आप कॉल सेंटर को एंगेज करोगे, आउटसोर्स करोगे अपनी सर्विसेज। आजकल सभी सर्विसेज, चाहे बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे आपकी एफएमसीजी कंपनी है, सबने कॉल सेंटर अपने बनाए हुए ना। तो कॉल सेंटर वाले को पेमेंट करोगे और उनका पेमेंट टीडीएस काट के दोगे, तो उनका 2% से कटेगा। कॉल सेंटर्स वालों के लिए 2% किया हुआ गवर्नमेंट। चलिए साहब, ये आज हम यहीं पर आपको अपनी बात को विराम देते हैं। और now only 5 to 7-8 minutes are left. Now you tell me, so today I have tried to cover some basic idea about TDS, regarding some other things like TDS on charity and other things. So that details I will share with you by tomorrow. And tomorrow I also plan to take up a topic called advance tax payment, because that is also very necessary. Whether you are an individual taxpayer, whether you are a businessman, to pay advance tax is very necessary. So advance tax, that means 4 times in a year you have to pay advance tax, because government won't wait for the end term. Okay, Avin have a question. Midterm will be subjective or objective? Midterm will be subjective or objective. Actually, I have still to make my question paper. I have not given a thought to it. You tell me, you want subjective or objective? सर ऑब्जेक्टिव रखवा लो। मिड टर्म ऑब्जेक्टिव ही रख दो सर। एक मैं कल और काम करूंगा। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने टाइप करे हुए थे। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना आपको बहुत सारे टाइप करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। आपको क्विज बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें। उसमें 4 ऑप्शन टाइप करो, आप समझ सकते हो। मेरे कुछ क्वेश्चन सर हम कर देंगे, हम में से कोई एक कर देगा। ही देगा। चलो, एक तो ये ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। अभी ऑफिशियल सेशन तो हो गया है, तो फिर आपसे बात